Good morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9, subject social science, and today we are going to start new chapter number 3 of history, and the topic name is Nazism and the rise of Hitler. This is the lecture 1. This chapter we will cover in 9 to 10 lecture. Student, in this chapter we will discuss about the ideology of Nazism. Student, you know, in last chapter we have discussed about the socialism in Europe and the Russian Revolution, and we have got the idea of socialism from the Russian Revolution. So student, you know, the First World War had occurred in 1914 to 1919. So student, in this chapter we will discuss about the ideology of Nazism and the power of Hitler, the power of the rise of power Adolf Hitler in Germany. So student, let's start, and in this chapter we will discuss about some topic. First topic we will discuss about Germany in World War First. Student, you know, the First World War had occurred in 1914 to 1919, and they had occurred different European alliance, and first alliance included Germany, Austria and Turkey, and second alliance was England, France and Russia. And after that we will discuss about the birth of Weimar Republic. After the First World War, Germany was also called Weimar Republic. And after that we will discuss about the treaty means agreement of Versailles. Agreement of Versailles, and it was also called peace treaty. It had signed between two allies, such as between Germany and allied power. And after that we will discuss about effects of First World War on Germany. And after that we will discuss about Hitler. World War, Hitler was participated in the Second World War. And next we will discuss about the youth of Nazi Germany. And after that we will discuss a Nazi propaganda, means Nazi use different method to promote their ideology in the country of Germany. So student, by this chapter we will learn about the condition of First World War and the Second World War, and impact of First World War and Second World War of different countries. So student, let's start, and firstly we will discuss about the introduction. Firstly I will give introduction of this chapter, and next we will discuss about the birth of Weimar Republic. And after that we will discuss about the effects of the First World War on Germany, and after that I will give some question in your homework. So student, let's start. Student, firstly, in last chapter we will discuss about the Russian Revolution, and we got the idea of socialism from the Russian Revolution. And you know, the First World War had occurred in 1914 to 1918, and in this chapter we will discuss about the which country involved in the First World War and what was the impact of First World War. Okay, so student, let's start, and firstly we will discuss about Nazism was a political ideology which flourished, which enhanced in Germany and influenced world politics. It was a system, means Nazism was a system, a structure of ideas about the world and politics. Nazism was the ideology of Adolf Hitler, and Adolf Hitler was the king of Germany. Okay, and Nazism was a system and was a policy, was a structure of ideas about the world and the politics. And student, 1939 से लेके 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. तो इसमें हम पहले ये देखते हैं कि इसमें जो आपका कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी
जर्मनी एक बार जीत गया था और उसके बाद वहाँ पे क्या है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड में जीतने के बाद वहाँ पे यूएस क्या हो गया, अलाइज पावर में एंट्री होने के बाद जर्मनी पर बहुत बुरी तरह क्या हो गया था, हार गया था। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। इसी वजह से जो था वहाँ पे जो थे कंडीशन क्या हो गई थी, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सा इंसिडेंट हुआ और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में किस इंसिडेंट से जर्मनी को कौन कौन से वहाँ पे इफेक्ट हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर। जियोनोसिडल वॉर started in Germany. Genocidal war means large scale, means killing on large scale leading to destruction of large section of people. Means large scale people were killed. And it was called genocidal war. Started in Germany before the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग होने से पहले ही बहुत बड़े लेवल पे लोगों को क्या मारना स्टार्ट कर दिया. इट रिजल्टेड इन द मास किलिंग ऑफ यूरोपियंस इन डिफरेंट इन ह्यूमन वेज. अलग अलग मेथड से यूरोपियन में अलग अलग काफ़ी सारे लोगों को मारा गया था एडोल्फ हिटलर की वजह से. इसी वजह से क्या जो लेवल जो ये वॉर था ये क्या काफ़ी बड़े लेवल पे हो गया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग कैटेगरी अलग रिलीजन्स के लोगों को मारा जा रहा था आइडियोलॉजी के सपोर्ट करने के लिए. इसी वजह से जो जर्मनी में बाद में क्या जो सपोर्ट था वो क्या हो गया था, काफ़ी कम हो गया था. नेक्स्ट देखिए बेटा, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नर्म्सबर्ग वाज सेट अप to prosecute Nazi was criminal. But Adolf Hitler was a very cruel king, and it was very strict action against their government. And after the Second World War, an international military tribunal means an international military court set up in Nuremberg to prosecute Nazi was criminal, and they said they declared that the Nazi was criminal, means those person who participate in the Nazi ideology, and he was criminals. स्टूडेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, ये जो सिचुएशंस है इसमें हम देख रहे हैं कि अभी तक आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन है इसमें हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे उनका, कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ऐसी कंडीशन हुई, जर्मनी बुरी तरह हार गया और वहाँ नाजी को क्रिमिनल बनाया गया था. क्यों बनाया गया था, कि उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन कौन से इंसिडेंट हुए. लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि 1945 में क्या हुआ था, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस रीज़न की वजह से ऐसा हुआ. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेटा इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट होती वैसे इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाएगी, जिसमें ये क्या है, नाजी को क्या है सजा दी कि नाजी को ये बनाएगी कि जो क्रिमिनल है उसने अपने वॉर में बहुत क्या है बहुत गलत तरीक़ों से क्या है अपनी पॉलिसी यूज़ की थी, जिसकी वजह से उसको क्या बनाया गया था, क्रिमिनल उसको घोषित कर दिया था. एंड द ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 नाजी लीडर. लेकिन फिर भी ट्रिब्यूनल ने केवल नाजी लीडर जो थे उसमें से जो उनके 11 लीडर्स को ही क्या दी थी, फांसी की सजा दी थी. एंड मैनी अदर वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ. लेकिन और जो थे लीडर जो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे उनको क्या की थी, उम्र भर की जेल दी थी. And the allies did not want to be harsh as they were after the first world war. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने क्या किया था, जीतने के बाद में और लोगों के साथ बहुत बुरी तरह उनको क्या किया था, पनिश किया था, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे. लेकिन अलाइस ने, यानी कि वहाँ पे दूसरी पार्टी अलाइस यानी कि इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, रशिया ने जर्मनी के अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया था. लेकिन जो जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, जर्मनी में जो नाजीज़म को जो सपोर्ट कर रहे थे, उनकी जो पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी. इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल को बनाया गया था, और जिसमें उसी इंटरनेशनल नाम पे कोर्ट बनाया गया था. उसी के अकॉर्डिंग क्या है, नाजी को यानी कि आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले को क्या किया था, सजा दी गई थी. तो ये बेटा ये सारा है 1945 की सिचुएशन. लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंसिडेंट हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ ऐसा हुआ और जर्मनी ने फिर अपनी कंट्री में नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए थे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक. Firstly, German was a powerful empire in the early year of 20th century.
You know, 20th century in German was very powerful country, and it fought the First World War 1914 to 1918 together with Austrian Empire and against the allies England, France and Russia. स्टूडेंट, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 अलायंस पार्टीज में हुआ था, 2 अलायंस ग्रुप्स में हुआ था. एक अलायंस में जो थे जर्मनी थी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, और आफ्टर दैट दे वर फोर्ट अगेंस्ट द अलाइज. दूसरी जो पार्टी थी उसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. और जो जर्मन थे, जर्मन, इटली, जापान और जर्मन के साथ ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये सारी थी एक्सिस पावर. दे हैड एक्सिस पावर मीन्स सेंट्रल पावर. इनके पास कहते सेंट्रल पावर थी. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये इनके साथ अगेंस्ट ये बहुत इन्होंने लड़ाई की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. और उसके बाद बेटा एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वॉर जर्मनी ऑक्यूपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम. यानी वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट में, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 में, 1918 में, फर्स्टली क्या है, जर्मनी बहुत अच्छी तरह से जीत गई थी और उसने फ्रांस और बेल्जियम पे क्या कर लिया था, ऑक्यूपाइड, यानी उसने कंट्रोल कर लिया था, यानी उसके अंडर में आ गई थी, जर्मनी के अंडर में. तो जर्मनी वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गया था. एंड आफ्टर दैट लेटर द अलाइज वॉज स्ट्रेंथ बाय द यूएस एंट्री इन 1917. लेकिन जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी स्टार्टिंग में क्या होती, बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया था, पावरफुल था, तो उस समय उसने क्या है, फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाइड कर लिया था, इन्होंने अपने कंट्रोल में. लेकिन बाद में क्या हो बेटा, 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस ने अलाइज पावर के साथ क्या कर लिया, अलाइज कर लिया. अलाइज यानी कि उसके साथ ग्रुप में वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एंट्री कर ली और वो अलाइज के साथ उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. इसी वजह से जो अलाइज यानी कि फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड के साथ यूएस ने भी क्या है, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया. और जिसकी वजह से उनकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जर्मनी की पावर क्या होगी, काफ़ी कम होगी. एंड दे डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 19. और उन्होंने अलाइज, दूसरी जो पार्टी थी अलाइज पार्टी, ने जर्मनी को बहुत बुरी तरह नवंबर 1918 में बिल्कुल हरा दिया था. क्योंकि जर्मनी स्टार्टिंग में बहुत पावरफुल था, लेकिन जैसे ही यूएस ने अलाइज पार्टी में अपना सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से अलाइज पावर को बहुत क्या मिल गई, पावर मिल गई, जिसकी वजह से जर्मनी क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था. उसके बाद देखिए बेटा, after that the defeat of imperial Germany and the resigning of the emperor gave an opportunity to the parliament party to change German polity. Student, the defeat, जर्मनी का साम्राज्य खत्म होने की वजह से the defeat in the war जर्मनी एंड द रिजाइनिंग ऑफ द एम्परर जो उस समय जो वहाँ के राजा थे वो थे विलियम सेकंड was the king of Germany at the time of First World War, and they gave resigning for their post, and the emperor gave an opportunity to parliament party to change German polity. और वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टीज को अपनी जर्मन की पॉलिसी को चेंज करने का क्या मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, उनको मौका मिल गया कि कंट्री अब में क्या है, जो भी कंट्री को रन किया जाएगा वो पार्लियामेंट्री फॉर्म के अकॉर्डिंग उनको रन किया जाएगा. क्योंकि वहाँ जो किंग थे विलियम सेकेंड, उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी पावर से रिज़ाइन कर दिया था. एंड ए नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर, एक नेशनल असेंबली बनाएगी. वाइमर वहाँ पे एक प्लेस का नाम है, इसी वजह से जर्मनी को फिर बाद में वाइमर रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है. एंड एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, नेशनल असेंबली बनाएगी और जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल यानी कि जिसमें क्या है, सभी को राइट टू वोट है, फेडरल स्ट्रक्चर है. ये मीन्स each level have different power. It is called federal structure. And a national assembly formed in Weimar Republic on the basis of federal structure, ताकि सबको क्या है, अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग सबको क्या पावर दी जाती है. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में क्या है, किसी के पास पावर ना होने की वजह से सारी पावर अब किसके पास आ गई थी, नेशनल असेंबली के पास. और वहाँ की जो deputies were elected to the
Reichstag, German parliament, and you know German parliament was also called Reichstag, on the basis of equal and universal vote cast by all adult including women. डेप्यूटीज जो भी वहाँ पे डेप्यूटीज हैं और लीडर्स हैं वो भी जो इलेक्टेड किए. राइस्टैग क्या है? जर्मन की पार्लियामेंट को कहा जाता है राइस्टैग. And they were selected on the basis of equal and universal vote cast by all adult including women. They were provided equal rights to the women, और इसी वजह से वहाँ पे सभी को क्या है, राइट टू वोट प्रोवाइड किए गए. और जर्मन पार्लियामेंट में क्या है, दोबारा से वोटिंग हुई और जो भी वहाँ पे एरिया जो बनाया गया उसको कहा गया वाइमर रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स राइट टू वोट, मीन्स फ्रीडम टू ऑल पर्सन. नेक्स्ट बेटा, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइड पावर. जर्मनी एंड द अलाइड पावर, इट इंक्लूडेड फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, एंड इट वाज कॉल्ड पीस ट्रीटी. पीस ट्रीटी हुई कि वो उसमें वॉर में तो हार गई थी, जर्मनी अलाइड पावर से हार गई थी, लेकिन उन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी हुई कि आप तो हार गए हो, अगर वो क्या है, उन्होंने आपस में क्या एक एग्रीमेंट कर लिया. इसकी वजह से वहाँ पे जर्मनी को हारने की वजह से बहुत बड़ा क्या हुआ, लॉस हुआ. एंड बाय साइनिंग द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी लॉस्ट. वर्साइल जो फ्रांस में एक जगह का नाम वर्साइल, जहाँ पे क्या लुइस 16 का पैलेस था, वो जो है वहाँ पे एक वर्साइल में एक पीस ट्रीटी हुई, और जिसकी वजह से जर्मनी जो हारा था, जर्मनी को बहुत सारी चीज़ों को क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ. एंड इट ओवरसीज कॉलोनीज अलाइड अंडरटुक द ओवरसीज कॉलोनी. जो भी उनका एरिया था, जो भी उनकी ओवरसीज जो कॉलोनीज थी, वो सारी किसने ले ली, अलाइड पावर ने. एंड 1/10 ऑफ इट्स इन प्रोडक्शन एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज. प्रोडक्शन मीन्स ओवरऑल जो प्रोडक्शन of factories and 1/3 और population and 13% territories area. यानी कि जर्मनी के पास जो भी वहाँ पे कॉलोनीज थी, जो भी वहाँ पे उनके पास जो भी एरिया था, और वहाँ पे जो भी उनकी पॉपुलेशन थी, और 13% जो उनका टेरिटरी थी, जो उनके एरिया को कंट्रोल करती थी, जो भी उनके एरिया में था, वो उसका सारा पार्ट उन्होंने अलाइड पावर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था. इसके अलावा वॉर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने 75% ऑफ आयरन, यानी कि जर्मनी में से 75% आयरन पे अलाइड पावर ने कंट्रोल कर लिया था. 26% जो कॉल टू फ्रांस और फिर पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लुथीनिया, यहाँ से जो भी तो आता था कॉल टू, वो भी जो था वो भी किसने लिया था, फ्रांस ने, पोलैंड, डेनमार्क, लुथीनिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि जर्मनी को बहुत बुरी तरह हार गई थी. एंड 6 बिलियन एज कंपनसेशन, वॉर में हारने का भी और अपनी हार मानने का भी इनको क्या देना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा, यानी कि मुआवजा देना पड़ा, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हार गई थी. दूसरी कंट्री वालों ने भी उन पे क्या डाला, दबाव डाला, और इसी वजह से जर्मनी को 6 बिलियन एज ए कंपनसेशन देना पड़ा दूसरी कंट्रीज़ को. एंड रिसोर्सेज रिच राइनलैंड ऑक्यूपाइड बाय अलाइड आर्मीज. और वहाँ पे जो रिसोर्सेज जिस एरिया में बहुत बड़े लेवल पे रिसोर्सेज पाए जाते थे, राइनलैंड, वो भी अलाइड आर्मीज ने अपने ही कंट्रोल में कर लिया था. मोर एवर द अलाइड पावर इज रिमूव्ड मिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम जर्मनी टू वीकन इस पावर. और इसके अलावा अलाइड पावर ने वहाँ की मिलिट्री को भी वहाँ जर्मनी में से हटा दिया था, मिलिट्री फोर्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी की पावर और भी बहुत कम हो गई थी. यानी कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने की वजह से बहुत सारा क्या है, नुकसान उठाना पड़ा था, बहुत उसको प्रॉब्लम हुई थी. दे बिलीव दैट जर्मनी was responsible for the war and damage the allied power faced. और they believed means Australia, Japan, Italy, they believed that Germany was responsible. वो मानते थे कि जर्मनी ने ही इस युद्ध में हारने की क्या है, सबसे बड़ी वजह है जर्मनी की जो पॉलिसी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसी की वजह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए हैं. इसी वजह से जर्मनी को अपनी पार्टीज़ को भी उनको इतना सारा पैसा उनको पे करना पड़ा, और इतनी सारी उनको प्रॉब्लम का उनको फेस करना पड़ा. तो जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारी थी, उसका सबको क्या करना पड़ा, जर्मनी को अपने एरिया का
बहुत सारा पार्ट दूसरी कंट्री को देना पड़ा, जिसकी वजह से जर्मनी की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। एंड वार गिल्ट क्लॉज हो गया था। वार गिल्ट क्लॉज यानी कि सारा जो वार में हारने की जो गिल्टी थी वो किसकी थी, जर्मनी की थी। और जर्मनी को फिर क्या कंपनसेशन देना पड़ा 6 बिलियन, एंड अपनी आर्मी उनको देने पड़ी, और जिसकी वजह से सारी जो रिस्पॉन्सिबल थी वॉर में हारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी थी, जर्मनी की। इसी वजह से जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरह क्या हुआ था, उनको हार का सामना करना पड़ा था और वो बहुत बुरी तरह उसमें हार गए थे। आफ्टर दैट बेटा द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, वॉर के क्या क्या इफेक्ट हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली अफेक्टेड यूरोप इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वॉर हैड deep impact on economic, socially, financially affected Europe in following ways. Psychologically, financially affected Europe in the following ways such as, फर्स्ट में जो जर्मनी जो था, यूरोप जो कंटिनेंट था बहुत ज़्यादा क्या था, पावरफुल था, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी के पास ही पावर थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो बहुत बुरी तरह हारने की वजह से, इसी वजह से जो यूरोप कंटिनेंट बिकम ए कंटिनेंट ऑफ डेटर फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कि जो पैसा देते हैं, डेटर जो पैसा लेते हैं, क्रेडिटर्स। तो पहले जो यूरोपियन कंट्री जो दूसरी कंट्रीज़ को पैसा देते थे, अब वो क्या लेने लगे, वॉर में हारने की वजह से वो क्या बन गए थे, डेटर्स बन गए थे, उनको दूसरों का पैसा पे करना पड़ता था। एंड द वाइमर रिपब्लिक वाज फोर्स्ड टू पे ह्यूज कंपनसेशन ड्यू टू वॉर, डिफीटेड इन वॉर, दे वर पेड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर कंपनसेशन। और वॉर में हारने की वजह से जर्मनी को बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारा पैसा क्या है दूसरी कंट्रीज़ को देना पड़ा, जिसकी वजह से जर्मनी की जो कंडीशन थी वो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। And after that, socialist, Catholics and Democrats who supported the Weimar Republic were criticized and came to be known as normal criminal। यानी कि जो भी पर्सन थे, सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स और डेमोक्रेटिक, जो भी वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, उनको क्या है, सब लोग नॉर्मल क्रिमिनल के नाम से ही जानते थे। बाय द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट, कंजर्वेटिव यू नो दोज पर्सन हु डिड नॉट चेंज द सोसाइटी, and they criticized the Weimar Republic because after the Weimar Republic Germany defeated in First World War, and they criticized Weimar Republic and they were called Nürnberg criminal। Weimar Republic को सपोर्ट करने वाले को नॉर्मल क्रिमिनल के नाम से क्रिटिसाइज किया जाता था, उनको उसी नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो सभी लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। After that beta, after the First World War, soldiers were placed above civilian and the media glorified their trench life, but in reality they lived miserable life in trenches। Trench means होते हैं खड्डे, shallow part of the area। means क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स की जो लाइफ थी वो क्या थी, सोल्जर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट सिविलियन, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल, नॉर्मल पीपल से सोल्जर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती थी। क्योंकि क्या है, वॉर में कौन जाता है, आर्मी पीपल जाते हैं, सोल्जर्स जाते हैं, तो उनको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। एंड द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच यानी कि जो वहाँ पे वॉर में लड़ने के लिए वहाँ पे अलग अलग एरिया में बहुत सारे क्या है ट्रेंचेस बनाए। ट्रेंचेस होते हैं खड्डे यानी कि शैलो पार्ट, जहाँ पे क्या है जगह को खाली करके वहाँ पे जहाँ पे आर्मी पीपल या सोल्जर्स रहते हैं और वॉर करते हैं, तो उनके बारे में मीडिया ने क्या है ग्लोरीफाइड के उनके बारे में बताया है। बट लेकिन रियलिटी ये थी कि जो ट्रेंचेस यानी खड्डों में रहने वालों की जो वहाँ पे आर्मी या सोल्जर्स की जो लाइफ थी वो बहुत मिजरेबल थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत पेनफुल थी। अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल हॉनर ऑक्यूपाइड द पब्लिक अटेंशन। और वहाँ पे बेटा क्या था, जो सोल्जर थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पुअर थी और वो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड थी। एंड ट्रैप्ड विद रैट फीडिंग ऑन कॉर्पसेस। और जो वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर थे या जो वहाँ पे सोल्जर्स थे, वहाँ पे जहरीली गैस होती थी उन खड्डों में, वहाँ रहते थे, और जहाँ पे चूहे को छोड़ा जाता है उनके पास वो रहते थे, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्या थी, पेनफुल थी। आगे अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल हॉनर ऑक्यूपाइड द पब्लिक अटेंशन।
और वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे क्या हुआ, वॉर होने की वजह से, और नेशनल सभी लोगों ने उसको क्या अटेंशन दी, सब लोगों ने क्या किया, उसको एग्रेसिव वॉर वहाँ पे जब बड़े होने पे सब लोग क्या हो गए, उनके अगेंस्ट हो गए, पब्लिक अटेंशन मिली एंड सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। और वहाँ पे सब लोग कंजर्वेटिव यानी जो कंजर्वेटर से थे उन्हीं को क्या मिली, सपोर्ट दिया गया। और इसी वजह से वहाँ पे जो टोटल जो एरिया था, जो कंट्रोल जिसका था, वो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का था। इसी वजह से जर्मनी को क्या है, बहुत बड़ा लॉस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने की वजह से। लेकिन क्या है, वहाँ पे जो वर्कर की जो कंडीशन थी, जो वहाँ के आर्मी पर्सन थे, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी। और उसके अलावा वहाँ पे एग्रेसिव, वहाँ पे वॉर में हारने की वजह से सबका मेन मोटिव क्या था, वॉर को कैसे जीता जाए। इसी वजह से सबकी अटेंशन केवल वॉर को जीतने थी, और उनको कोई उनसे वर्कर की या किसी सोल्जर की कंडीशन कैसी, उस पर किसी का भी कोई अटेंशन नहीं था। सारा अटेंशन जर्मनी में अपनी पावर को सपोर्ट करना। इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने की वजह से जर्मनी की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी। और वाइमर रिपब्लिक होने के बाद वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले पर्सन्स को नॉर्मल क्रिमिनल के नाम से जाना जाता था। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई थी, इसी वजह से उनको अपना बहुत सारा एरिया कंपनसेशन के रूप में उनको दूसरी कंट्री को देना पड़ा। क्योंकि जो उसके सपोर्टिंग थी कंट्री थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, उन्होंने क्या है ब्लेम किया था कि ये जो जर्मनी में जो हार हुई है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई, वो किसकी वजह से हुई है, जर्मनी की वजह से। इसलिए जर्मनी को काफ़ी सारा पार्ट दूसरी कंट्री को देना पड़ा। इसी वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी काफ़ी बैड हो गई थी। Today your homework student, question number 1, what was Nazism? And question number 2, how was Germany defeated in World War First? And question 3, what was Reichstag? Question number 4, name the members of the Allies. And the Treaty of Versailles was harsh and humiliating, justified by giving 3 terms treaty. And question 6, how Germany adopted democratic constitution. Okay student, and all question done in your fair notebook and revise chapter. Thank you.